Hey everyone, welcome back to Quarter Life Experience, a podcast where we three of us discuss about life, all the problems we have faced, and the solutions, and many more. So this is our fifth episode, and today we're gonna talk about mental health. We know that's a sensitive topic, and we're just gonna give our inputs on what we think about mental health and all. Yeah, what we have gone through, Yeah, we've yeah. experienced it throughout the years. I believe we like three of us have already experienced what is the importance of mental health, right? We have also discussed in the J video as well, right? Yeah, yeah. यप यप If you haven't seen it, you can like लाइक watch हम it लोग का जो again. पहला एपिसोड था उसमें ही हम लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बोला था Mm. बट इट वाजंट वेरी स्पेसिफिक Yes, तो sir. आज हम लोगों ने सोचा कि एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाए मेंटल हेल्थ के ऊपर Yeah. और इट वाज अ नेसेसरी थिंग बिकॉज Mhm. आजकल के टाइम में जब लोग अवेयर हो रहे हैं लाइक हम्म। पहले के टाइम से अभी कंपैरिजन में काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है Mhm. क्या ये रोल प्ले करता है और हम लोग की जैसे जनरेशन आगे जा रही है वी आर लर्निंग इट तो हम लोग का भी एक एफर्ट है आप इसको एक एफर्ट मान लीजिए कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों ने फेस किया है फिर हम लोग जिस पॉइंट पे आ गए हैं वो पहले कैसी थी अब कैसी है आगे होने वाली कैसी रहेगी लोग उसके ऊपर पूरी तरीके से बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद देवाशीष तुम बोलो Yeah, so the first when I realized that I was in a position where I was having bad mental health when I was preparing for my JEE. Okay, so you all know how hectic the JEE schedule or JEE life is preparing for JEE. So when I was in 11th, 12th, so I always kept thinking about like what's gonna happen, like which college I'm gonna get, what will be the rank, and this all that. So basically, even when I was sleeping, I was dreaming of colleges. When I was sleeping, I was dreaming of what's gonna be my rank. Before sleeping 1 hour, I was gonna calculate my rank, and after waking up for 1 hour, I was gonna Yeah. calculate which college I'm gonna get. We used to see, right, how in what percentile we'd get in these colleges. Yeah. Every time, like my Google charts, like Google search bar was always filled with like And yeah. rank predictor, college predictor, this that. Uh, Okay, so when I realized that my syllabus was not that much complete that it should have been, I was like my like mental state went bonkers. Like I still remember like that sense of feeling that I have lose everything, I have lost everything. I let my parents down, I let myself down. Like everybody was expecting some good result from me, and only I know what situation I'm right now. yeah, the fact that everything is provided to you, Uh-huh. right, the coaching, everything, books, Huh. and Huh. we are bound to get the success, right? Yeah, and just this simple thought one day, like I clearly remember it was in class 11, yeah, when I was in class 11, the dates for the pre-boards were declared. We used to have pre-boards, like before board exam we have a board exam in 11th final, so before board exam we used to have pre-boards to prepare for the boards. So the schedule was declared. Then I clearly remembered the like I felt like I was shivering like from my toe to my like tip of my head. Like what is this? Like the like and it was only 15 months 15 days away from the schedule. So that was the first thought that was ignited in my mind, and from that a whole series of like thoughts start coming, and I eventually overcome it in, I guess, January. It started in 11 last, class 11 yeah, last. class 11 ka last phase, and I eventually overcome in, I think, almost in the last of class 12. So it was almost a 1.5 year of thoughts, Bad mental health. bad mental health. Yeah, so yeah, that was my experience. Like we're gonna talk about the what we did, but we just first saying what were our first encounters. Can we say his situation as depression?
मतलब how can we I'm differentiate it? not gonna say like so ऐसा है कि हम लोग इसको डायरेक्टली डिप्रेशन नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव एन डायग्नोस्ड इट. मतलब एक डॉक्टर होता है, एक प्रोफेशनल होता है, विल डायग्नोज यू इफ यू हैव अ डिप्रेशन और नॉट. बट क्लियरली देवाशीष, तुम अपने मेंटल, वो अच्छा मेंटल स्टेट नहीं था. Yeah, yeah. Yeah. We can Definitely. clearly say so. We are not labeling it as a depression, Yeah. but it wasn't a good mental state. Yeah, yeah. The people from now, right? Even if they're sad for a day, they used to आजकल के लोग give the क्या term हो गया depression, है right? कि हाँ. किसी का दिन खराब होगा कि वो डिप्रेशन में आ गया, Bad right? बहुत relationship depression breakup, में आ गया, then वो बहुत डिप्रेस हो depression. गया हूँ. Mhm. तो नहीं. और डिप्रेशन इज अ सीरियस थिंग. उसके लिए तुम्हें एक डायग्नोसिस करवाना पड़ता है, लाइक अ डॉक्टर, अ प्रोफेशनल विद पूरा टेस्ट होगा तुम्हारा. बट ऐसा भी नहीं कि लाइक अगर तुम अभी क्लिनिकली टेस्टेड नहीं हो दैट मीन्स यू आर नॉट डिप्रेस्ड. Yeah, some people are You not might be. aware, No, right? मतलब of that. yes, definitely you might be, but हम लोग लेबल अभी इस वीडियो में नहीं करेंगे. We're not gonna level something as depressed or not. तो अविनाश, what's your story? Yeah, my experience is same. Like in the drop year, I have already said in the first video, the J video, that 11 was completely fine. Okay, I thought I will make it. I will live up to my thoughts. How I expected my marks to be. And what happened in my drop year, right? Pranjal, you are also a dropper, right? So what happens, right? You have the whole day. You wake up, you get your brush, you brush your teeth, then you will have a breakfast, then you will study, take a bath, have lunch, study, then half an hour of something you will watch in Netflix or something. I used to do that. Then again study till night, have dinner and sleep. It was going almost for 6 months. And I was also in the Corona batch, right? So my 12 also went the same way. Yeah. So I will say for more than 1.5 years, I was not in a peaceful state. मतलब, you are not free, right? You're not free, it's more of an exhausted state. Yes. जब तुम्हारा एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है और एक हेक्टिक शेड्यूल और तुम उसको बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे हो, तो लाइक बड़ी मेंटल पीस की महाबहन हो जाती है. Okay, so like your like that sense of not feeling like well mentally was ignited by the thing that your schedule was very hectic. Schedule was very hectic, and the fact that I was allowed to go out, right. My Yeah. parents were that much good to give me, but I was there in my mind, right. If I whole 1 year will be wasted, right, if I waste my time in the evening, talk to my friends or something like that. That was in my mind. Even if I went also, right. In Sunday I used to go to my friend's house and chat for a bit, but still you are not able to do things freely. The thing is, का correct term होगा, you are mentally not at rest. तुम जब जेई की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हो, इन द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव अ प्रेशर कि तुम्हें उसको पास करना है, तुम्हें उसको क्लियर करना है. I agree. यू आर नॉट एट अ रेस्ट स्टेट ऑफ योर माइंड. तो वो पीसफुलनेस नहीं रहती है. और अगर तुम्हारा बैकलॉग है तब तो भाई साहब पूछो मत. क्योंकि यू हैव अ बैकलॉग. Yes, फिजिक्स में बैकलॉग था. बैकलॉग तो मेरा सब में था. मैथ्स में हो गया था. मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे जेई पे, पर बैकलॉग नहीं था. मेरा पूरे में बैकलॉग था. फिर क्या हुआ, ऐसे ही चला. Even after giving my exam, then also my thought was that only. I went to my mama's house after we did, right, after 1 year drop, how much you'll stay at home. So I went for a vacation to my mama's house. There also in my head there was thought, what will be my result, when will the results will come. NTA used to declare the result at night 2 a.m. Yeah. Yep. That was very much. I used to wake We up got that our results at 2:30. Yes, I guess. yes. Yeah, approximately like 2:30 or something. even after getting the result, which college I will get, I used to see the infrastructure placement around my range of percentile, right. I used to compare everything. So after getting my admission, after that I will say I am at peace or something. My mind was at peace. Yeah. नाइस. तो अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ. मैंने पहले वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है अपनी जेई की जर्नी के बारे में. मैं अपने मेंटल स्किल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, तो मैं वहाँ अभी इसके बारे में बात कर लेता हूँ. तो क्लास 11 में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. आई वॉज इन जयपुर LN, और यार PUBG, दोस्तों के साथ घूमना, मॉल जाना, ये करना वो करना, मेरा बैकलॉग आना स्टार्ट हो गया. एंड देन वन टाइम माई पेरेंट्स विजिटेड मी, और फिर मुझे लाइक पूछ रहे कि कैसी पढ़ाई चल रही है. लाइक व्हेन आई वाज हिट विद द रियलिटी
तो मैंने कहा नहीं पे बैकलॉग क्लियर करना है, आई हैव टू रियली फोकस ऑन इट। बट बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा था बिकॉज जिस स्पीक से पढ़ाया जा रहा था मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा था, मैं बैकलॉग क्या कवर करूंगा। Our parents used to at dinner time, right? They used to ask how is Yep, the study going on. If we are not coping up with our syllabus, it feels bad to say them, right? Yeah. तो It's a very bad एलन thing. में क्या होता है कि एलन में हर वीक टेस्ट होता है तुम्हारा। इट इज़ द कम्प्लीटली जेई फॉर्मेट। तुम जाते हो, तुम्हारा कभी कभी तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, जैसे कि जेई की वेबसाइट होगी वैसे ही तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। इट इज़ एग्जैक्टली अ क्लोन ऑफ योर। तो तुम्हें वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हें जेई कैसे पेपर देना है जाके। तो मैं जाका था एंड पहले कुछ पेपर्स में मेरे मार्क्स अच्छे गए, आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई क्लास। उसके बाद मार्क्स मेरे बैकलॉग की वजह से आना ख़राब हो गए एंड देन मेरे पापा मम्मी कॉल आके, क्योंकि हमारा रिजल्ट माई पेरेंट्स के बाद जाता है, तो Nice. वो तुम्हें कॉल करते हैं एंड फिर वही यार पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट किया, मैं भी डिसअपॉइंट किया। फिर एक पॉइंट के बाद तुम ये सोचने लगते हो कि डज इट रियली मैटर। एक पॉइंट के बाद तुम इतना थक चुके होते हो, एक पॉइंट के बाद तुम हाँ। इतना हार चुके होते हो कि यू थिंक अब पॉइंट ही क्या है। इट्स लाइक फाइटिंग अ वॉर जिसको तुम ऑलरेडी हार चुके हो, फाइटिंग अ लूजिंग वॉर। तो मेरा 11th के लास्ट कैसा हो गया था। देन 11th का कम हुआ, मेरा डमी स्कूल था, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। मैं एग्ज़ाम शायद देने भी नहीं गया था, आई डोंट थिंक मैंने एग्ज़ाम दिया अभी 11th का। मतलब बीच के एग्ज़ाम नहीं किए हैं, लास्ट वाला एग्ज़ाम दिया था एंड दिया था मैंने एंड फिर मैं पास हो गया। लेकिन मैं आज तक मुझे नहीं पता मेरा 11th का रिजल्ट कहाँ है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी अपने क्लास टीचर से अपना रिजल्ट नहीं लिया था। I guess Parents मेरा भी teacher- सेम। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती की, बट मेरे पेरेंट्स को 600 किलोमीटर दूर रह के लखनऊ में, तो दे कांट कम। तो मैं कभी गया नहीं, उन्होंने कभी गया नहीं, बट मैं 12th में आ गया। और 12th में आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 12th मैं ड्रॉपर वाला बैच लूँगा, बिकॉज ड्रॉपर वाले में वो 11th 12th का दोनों पढ़ाएंगे। मैंने 11th पढ़ा नहीं है, Got it. तो मैंने कहा, पापा मम्मी ने कहा ठीक है, इट वॉज अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, बट पापा मम्मी ने कहा अगर तुम्हारा 11th क्लियर हो रहा है तो ले लो। तो मैंने वो लिया एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। कोविड आ गया, इट वॉज ऑनलाइन लेक्चर। पहले कुछ महीने अच्छे रहे, मैंने सब किया, मैंने बैकलॉग भी थोड़ा बहुत क्लियर करना स्टार्ट कर दिया था, बट देन द सेम थिंग हैपेंड जो 11th में हुआ था। मैंने टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपनी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और ही गलती की, इट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। मैं जिस मेंटल स्टेट पे पहुंचा वो मेरी ही गलती थी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। बट जिस मेंटल स्टेट में मैं था, मैं अपनी होप को लॉस कर चुका था। इट वॉज समथिंग लाइक कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहा है। लाइक जो बंदा क्लास 10th में इतना एम्बिशियस था कि मेरे को वेपन सेक्टर में जाना है, प्राइवेट वेपन इंडस्ट्री, ये करेगा वो करेगा। मुझे अभी वो थॉट होता है कभी कभी, क्या कर रहा हूँ मैं। वही तो कभी उसके बाद इतना टाइम वेस्ट करने के बाद लगता है ना, क्या कर मैंने अपना क्लास 12th में जेई किया, मेरे 50% आयल का। 50 मतलब तुमने 50 मतलब वो क्या कहूँ, अगर पेपर छोड़ के भी आओगे तब तो तुम्हारे 50% आयल आ जाएगा। Yeah. वो बहुत खराब का parents नॉन नेगेटिव मार्क में, नॉन नेगेटिव में तो disappointed. 20-30 आ जाता है शायद। है। तो फिर मैंने कहा कि मैं ड्रॉप लूँगा। मैंने पापा में कन्विंस किया, मैंने खुद को भी कन्विंस किया, बट अंदर ही अंदर पका था, देयर वाज नो होप। आई वाज जस्ट मैं बस अपनी बर्बादी के लिए थोड़ा टाइम दे रहा था खुद को। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप में मैंने 11th 12th का कोर्स लिया, बट इस बार मैंने एलन को छोड़ा और मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग अपनी कक्षा करके था अमन कवाल का, लिया था सेम। मैंने वो लिया। हैं? मैंने पेरेंट्स को तुम कन्विंस अपनी किया कक्षा कि मैं इसको कर- ऑनलाइन बस कर पता लूँगा। चला। पेरेंट्स मैं देख रहा कौन सा था, वाला कोर्स लिया था? आई डोंट रिमेंबर यार, इतना याद नहीं। ड्रोना वोना ऐसा कुछ था ना। हाँ, ड्रोना। ड्रोना बैच का ऐसे ड्रोना, करके। ड्रोना, हाँ। और मैंने पेरेंट्स कन्विंस किया, बट मैं देख रहा था एज अ टाइम वाज गोइंग ऑन, मेरे पेरेंट्स की होप भी कम हो रही थी, लाइक दे वर लूजिंग होप। तो मैंने पढ़ा, मेरा 12th भी लाइक उतना अच्छा नहीं था। मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया और इट वाज एब्सोल्युटली शिट शो। मेरा 10% का ही लायक है। ड्रॉप ईयर से कम, मतलब पहले वाले कम से, मतलब जो पहले वाला एग्जाम दिया था मैंने क्लास 12 के लास्ट में, मैंने ड्रॉपर में, उससे भी खराब हो गया मेरा 10% का। मतलब इतना गंदा है ना कि अगर तुम इंटेंशनली गलत करोगे पेपर में तब भी तुम्हारे 10% का नहीं आएंगे। नेगेटिव में आया था। देन मैंने पापा में नेगेटिव पे लाइक नेगेटिव 20-30 इतना होना Oh, yeah. पड़ेगा।
फिर मैंने पेरेंट्स को पेरेंट्स भी वो स्केक में थे, उनका भी मेंटल स्केक अच्छा नहीं था, पापा मम्मी भी अब खुश नहीं रह कर गए। देन दे टुक मी टू काउंसलिंग, उन्होंने मेरी काउंसलिंग करवाई। देन आई वाज लाइक That was a good decision. इट वाज अ गुड डिसीजन। यस, काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। काउंसलिंग किसी प्रोफेशनल के पास वो नहीं लेकर गए, वो एक टीचर के पास ही लेकर गए, वो भी मेरे होम टाउन में कोचिंग है वहाँ पे लेकर गए। तो और वो मुझे पहले क्लास से उनके पढ़ा चुके थे, तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ हेल्पफुल थिंग। उन्होंने मुझसे बोला कि इट्स ऑलराइट, कि अभी मतलब हमारे जेई में एक साल में तुम 2 बार दे सकते हो जेई मेंस का पेपर। तो मैंने पहली बार दिया था, दूसरी बार देना था। उन्होंने कहा कि देखो 10% का लाए हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो, बट तुम सेकंड ड्रॉप लो, इस बार अच्छे से पढ़ना। तो पापा मम्मी मान गए कि इसको अब इसी कोचिंग में मतलब जिस कोचिंग से मैंने क्लास 10 किया था इसको फिर से वही कराएंगे। आई वॉज गोना बी एक डबल ड्रॉपर, तो मैं ड्रॉपर के बैच में था, और मैं ड्रॉपर के बैच में था। आई वॉज द ओनली डबल ड्रॉपर इन दैट बैच। और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट के बीच में देयर वाज कितने दिन का गैप था? 2 months. 2 मंथ्स का गैप था। Hmm. बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा। एंड देन आई सिक्योर्ड 87 परसेंटाइल। तो 10 परसेंटाइल से 87 परसेंटाइल आ गए मेरे। माई मेंटल स्केक वाज डूइंग अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि जब तुम्हारे इतने कम में से इतने मार्क्स आ जाते हैं तो तुम्हें अच्छा फील होता है। पापा मम्मी भी खुश गए, देवर लाइक कि अब अगर तुम्हारे 87 परसेंटाइल आ गए हैं तो आगे जाके अगर और मेहनत करोगे तो इजीली यू विल एबल टू स्कोर 96-97 परसेंटाइल। Right, yeah. Okay, so like they were targeting for the next year. या और सर ने भी कहा कि हाँ 87 परसेंटाइल आ गया, बहुत अच्छा है, 10 से बेटर है, तुम अच्छे से पढ़ना इस बार, ईजिली कोई ना कोई नैकी मिल जाएगी। मैं भी मान गया था, बट अंदर ही अंदर मेरे को एक बात खा रही थी कि नहीं अब रहना मेरे है से इसमें। नहीं होगा, मैं 11-12 फिर से नहीं पढ़ सकता। Mhm. बिकॉज 11-12 की पढ़ाई नहीं होती, वो एक बोझ होता है, हमारी क्रिएटिविटी मार दी जाती है। व्हेन यू आर स्टडिंग इन 11-12 क्लास 10 तक तुम जो पढ़ते हो ना, हमारी क्रिएटिविटी जिस लेवल पे होती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है यार, क्लास 10 तक बहुत अच्छे होकर 11-12 में आके बर्बाद हो जाते हैं, बिकॉज वो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है ना, वो निकाल दिया जाता है। Nah, I कंपटीशन won't कैन say क्रश योर क्रिएटिविटी। that. I won't say that. मुझे लगता है वो Creativity होता है. क्रिएटिविटी होता है, पर सिलेबस ऐसे बनाया गया है ना, the syllabus is so crammed up ना, इंटरेस्टिंग, मतलब लाइक सबके साथ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबके साथ होता है, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में No, अच्छे no. होने का Actually, the मतलब thing is like जब तुम like class 1 से 10 तक जा रहे होते ना, तो like it is a linear curve, the difficulty linear yep. होता है. 10 से 12 10 डिफरेंस बहुत 10 बढ़ से जाता है। 11 में डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाता है, तो बट दैट डजंट मीन कि दैट डजंट लाइक नर्चर द क्रिएटिवनेस। आई बिलीव दोज हु कैन एंजॉय इट एंड दोज हु कैन लाइक ओवरकम दैट सब नहीं कर पाते ना, हाँ, सब नहीं कर पाते, हाँ, सब नहीं कर लेकिन पाते। क्रिएटिविटी किल नहीं करते। क्रिएटिविटी डजंट किल, इट जस्ट डैम्स इट। 10 के बाद बहुत हो चीजें सकते हैं। चेंज हो जाती है ना, तुम कॉलेज चेंज कर लेते हो, हाँ, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता नए है। फ्रेंड्स बन जाते बहुत हैं। सारे फैक्टर्स होते हैं और सब पे ये लागू नहीं होता है, बट इट वाज पर्सनली विद मी, मेरी क्रिएटिविटी काफी डाउन हो गई थी। लाइक दैट थिंग्स आई वाज एबल टू डू इन क्लास 10 में, जो इमेजिनेशन बचा वो मैं 12 जो ड्रॉप ईयर के लास्ट में मैं वो नहीं कर पाता। आई एग्री ऑन दैट। एंड 10 मेरे 91 परसेंटाइल है। मुझे तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट भी करती है। कहाँ पे है ये? मुझे तो ये भी नहीं पता ये बीटेक होता है। ओ मेरे को कुछ भी नहीं प्रॉपर पता। ईयर में पता चला मुझे। एंड देन मैंने मेरा रिजल्ट आ गया, एवरीवन वाज काइंड ऑफ हैप्पी। मैं अभी भी ड्रॉप ईयर की कोचिंग कर रहा हूँ। एंड देन आई वाज सर्चिंग, शाम को मैं आके सर्च करके कि कौन सा कॉलेज मेरे को मिल सकता है 81 परसेंटाइल में। मैं जनरल हूँ तो मुझे पता था 81 परसेंटाइल में कुछ भी नहीं मिलेगा, बट होपफुली मैंने रिसर्च करी, मुझे साउथ में कुछ कॉलेजेस मिल रहे थे और मेरे नॉर्थ ईस्ट में मिला तेजपुर यूनिवर्सिटी, फिर आसाम यूनिवर्सिटी था। देन आई चूज़ कि मैंने पापा को कन्विंस किया कि पापा तेजपुर यूनिवर्सिटी है अच्छी, इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके मैंने बोला। रिसर्च किया कि प्लेसमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी है। इट वॉज 81 परसेंटाइल के हिसाब से तेजपुर यूनिवर्सिटी ठीक था। इज़ रियली गुड, इट्स नॉट ठीक ठाक। अगर तुम बाकी GFTI से कंपेयर करोगे तो इट इज़ ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कंपेयर के लिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू 87 परसेंटाइल। हाँ, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू minded. 87 परसेंटाइल। तो यहाँ पे आ गया मैं। आई गॉट मैकेनिकल इन द फर्स्ट राउंड ऑफ CSAP। फिर सेकंड राउंड में मुझे लगा कि अपग्रेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, EC हो जाएगा, बट जाके हैपेंड मैकेनिकल ही रहा। और मैं अंदर से कहीं खुश था क्योंकि मुझे मैकेनिकल में इंटरेस्ट था मेरा। मैं आया यहाँ पे, मेरा मैकेनिकल का एक वाजंट गुड, इट वाज लाइक
जो अंदर से मुझे एक कीड़ा खा रहा था ना कि मुझे 11 12 फिर से पढ़ना पड़ेगा या एक रिपीटिशन, वो नहीं का लाइक आई वॉज रिलैक्सड, आई वॉज काइंड रिलैक्सड, आई वॉज लाइक कि मेरे लाइफ का एक सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। इवन दो मेरी चॉइस जो कॉलेज की थी या फिर मेरा मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला मेरे को, बट एक लाइफ का नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है रिगार्डलेस कैसा भी होगा। तो मेरा मेंटल स्टेट पहले से बेटर हुआ। तो का थिंग इज कहीं ना कहीं तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो अपने मेंटल स्टेट के लिए। कई बार ऐसा होगा कि दूसरे बाहर के लोग फैक्टर आ जाते हैं, बाकी कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल के हो। हाउ डू यू हैंडल दूसरों इट? की हेल्प ले सकते हो। कई बार होगा तुम दूसरों से बात शेयर भी नहीं करते हो, तुम खुद ही उससे लड़के हो फिर खुद ही बाहर निकलते हो। दैट्स ऑन यू। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यू शेयर योर प्रॉब्लम विद लाइक जो तुम्हारे क्लोजेस्ट लोग हों तुमसे, उनसे प्रॉब्लम शेयर करना, स्पेशली योर पेरेंट्स। तुम्हें लगता है कि तुम पेरेंट्स को बताओगे तो उन्हें टेंशन होगी, और जनरली हम लोग ऐसी बातें पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। दैट इज कम्प्लीटली लाइक इंडियन सोसाइटी में हम लोग पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं करते हैं। दुनिया भर की बातें बताएंगे बट अपनी जो खुद के अंदर चल रहा होगा वो नहीं बताएंगे कभी नहीं। तो बताओ, बी ओपन विद योर पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि तुम पूरी लाइफ भर क्लोज रहे फिर अचानक से ओपन हो जाना, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस। हर बात आज खेलने में ये हुआ, मेरा मेंटल स्टेट क्या क्या ये करके, इट्स अ प्रोसेस। कुछ शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मेक गुड फ्रेंड्स और बी अ गुड फ्रेंड, ऐसे करके मैं बोलूँगा। नाइस सेइंग मैन, बी अ गुड फ्रेंड। या तो हाँ, मेंटल स्टेट मेरा ये स्टोरी थी। Okay, so like you said like 10% to 87 percentile in a 2 month gap is like a really good improvement. A really good improvement. Like there are very less people who can do that like within 2 months. So like till 10 like till the first exam in which you scored 10 percentile na. So you were in a bad phase. A really bad phase. In the 2 months, like even if you were in like mentally exhausted phase, but you still improved yourself. So like what was your like thoughts and like what was your, I would say, motivation like in only that motivation phase? was In those two improvement उन 2 महीनों phase. में एक ही मोटिवेशन का, it wasn't motivation, it was ultimatum कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। माई पेरेंट्स का, मेरे पापा ने कहा अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें 11 12 में बायो से करवाऊंगा एंड देन फिर मैं एमबीबीएस करना पड़ेगा। Like he gave the ultimatum and he wasn't joking. That's nightmare. He wasn't joking. मैं उनके चेहरे से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा लाइफ में बहुत कम बार सीरियस हुए मेरे साथ, और at that moment he was serious. Then I was like, ओ भाई साहब अब खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा वरना लाइफ खराब हो जाएगी। तो हाँ, बिना सोए 2 महीने रगड़ने के बाद तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा जिसने 2 साल बुक्स नहीं उठाई वो हो जाएगा, सिंपल है। So the thought that like this is it, like this is the last thing that will improve my situation. So that strike you. It's like a do or die situation. It was a do or die situation. कोई चांस नहीं इसके अब इसके बाद कोई चांस नहीं है। एक सब फाइनल अटेम्प्ट, ऐसा भी नहीं तुम नीट दे रहे हो, तुम दे सकते हो अगले साल। हमारा एक सेफ्टी नेट होता है, एंड व्हेन यू हैव अ सेफ्टी नेट तुम हल्के फुल्के like इधर कर घूम सकते हो। But when you don't have a safety net, you have to like give 100%. It's like a really do or die situation. Because अगर मेरा इस बार भी नहीं होगा तो मैं क्या करता यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं 12 के पास ही रहता, कोई किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता, तब मेंटल हेल्थ और खराब हो जाता। हाँ, तो और he seems to be relating very much. Yep. Okay, so like I hope your case is also the similar. Same. But mine is little bit different, but because like it was not do or die for me, because I had one choice कि like drop दे सकता था, but the thing was कि like it was shameful for me. My parents also agreed that I can drop, there was no issue, and I really didn't give any F about what other people think. That is also true. But the thing why I was shameful was, the thing is, it was decided by me that I will go for JEE. It was decided by me that I won't drop.
इट वॉज डिसाइडेड बाय मी कि मैं इस बार ही क्रैक करूँगा. बट आफ्टर दैट नो, इवन after no one forcing me to do something, even after all the things were my decision, I completely let myself down. So that was very shameful for me. The burden keeps getting bigger, right? Yeah. So like after going through like 2 to 3 months, like I used to cry a lot, and I believe crying is good. बहुत लोग बोलते हैं कि men don't cry, men don't cry. Bullshit. This is bullshit. Crying is good, you know. Like when you are in stress now, so when the whole, not only your mind, the whole body can feel the stress that the mind is feeling. So letting that stress out also like makes everything like it induces a change in you now. So crying is good. I used to cry a lot, and I was in a stage for this stage like 2 to 3 months. But it is like I am so thankful that it struck to me that I should tell my parents. And like बहुतों को लगता है कि पेरेंट्स को बोलना नहीं चाहिए, आई एम गोना ओवरकम दिस माई सेल्फ. बट थैंकफुली आई डिसाइडेड कि मेरे को पेरेंट्स को बोलना चाहिए. So then one day, People generally feel shy to share these things, right? shy or shameful or yeah. fear to afraid to say those things. How they will react to this. Yeah. But like I was confident, like they gonna obviously support me. But the thing was, I tried to improve myself first. But when I realized like it's getting difficult, I like finalized to tell them. So I clearly remember when I told my mom that like I have been going through this. I hugged her for like literally 20 to 30 minutes in the bed, and like I was crying. She was also crying, just like for just looking at me, and that like seeing her son in this condition. Yeah. So that was the phase. She supported me, my sister, like everyone in my family supported me. That's what gave me the power to go through the whole 1.5 year of that phase. And I believe if they went there for me, if I was also like वो भी ऐसा होता है कि तुम्हें जो करना है करो, we not gonna blame you and we not even gonna help you. अगर वो वैसा करते, so I'm sure that मैं इधर नहीं होता. Like that's for sure मैं इधर नहीं होता. But they supported me. Their support like brought me like make me handle or make me go through all the hurdles of 1.5 years now. So telling your parents is important. I believe sharing, or you might not even like, if you think that your parents are not that supportive, you can also tell your friends who you are good with. I used to share my thoughts with some of my good friends. But the thing is, if you look at me like if you think, or if you like you don't know me like personally or that good, you will think that he's a guy that doesn't talk to people that much, or he is very egoistic, this, that. But the thing is, when I was in this phase, I got the mentality that I have to share this, otherwise it's gonna be very difficult for me. So I used to share my experience, or like what I was facing, the hurdles I was facing, the problems that used to strike my mind in the middle of the night. I used to share everything with my friends, and like sharing, that's why I'm saying, like from my own experience, sharing is very good. And like sharing is good if you find the right kind of supportive people, and if you don't, please don't share with anyone. Like अगर तुमको लगता है, हाँ ऐसे भी बहुत लोग थे जिनको तुम बोलोगे कि भाई मेरा तो ये हो रहा है, like I am going through this, वो बोलेंगे तुम खाग ये सब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तुमको, तुम खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो ऐसे, इसलिए ऐसा फील हो रहा है, ये सब. अगर वैसे लोग मिले तो मत बोलियो. वैसे लोग मिले तो
you are in a situation like that's gonna be difficult, but you have to overcome on your own. But saying things to those kind of people is definitely gonna make it worse. Demotivating. Yeah. Yeah, sharing with parents is important. Hmm. Talking to them is very important. And I The also ultimate thing is sharing is important. अगर कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर. yeah और लाइक जब तुम शेयर करके हो ना, तो इवन दो तुम्हें सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा हो, यू नॉट गेटिंग अ सोल्यूशन, तुम्हें अंदर से एक रिलैक्सेशन मिलता है कि समवन नोज अबाउट योर प्रॉब्लम और तुम अकेले नहीं हो. द बिगेस्ट Yeah. बैटल, मतलब मेंटल बैटल इज तुम्हें फील होता है तुम अकेले हो, यू आर लोनली. द बिगेस्ट थिंग इज Mhm. तुम ऐसी सिचुएशन जा रहे होते हो, तो शेयरिंग अगर तुम करते हो और तुम्हें सामने से अगर कोई सपोर्ट देता है तो लाइक एक अलग लेवल का मेंटल पीस मिलता है. Also, It helps, apart- it act like a medicine to you, it acts like a, तुम्हें कोई दवाई लगा रहा है. तो Also, हाँ, शेयर करो. apart from sharing with your parents and friends, I would say share with people who have common grounds for it, right? If we are, for example, we are giving JE, okay? You can talk to a friend who is also giving JE. हाँ, अपना एक You सेफ can ग्राउंड share ढूंढो. things, right? एक सेफ ग्राउंड होगा सबका, एक But- सेफ्टी पूल होगा. मैं वो सबका पर्सनल होगा, हम लोग नहीं कहेंगे कि तुमको इसको शेयर करना उसको शेयर करना है. Mhm. सबका अलग ही सर्कल होता है जहाँ पे तुम्हें सेफ्टी फील होती है. Yeah. तो फर्स्ट गो विद देम. अगर तुम्हें उतना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं Mhm. तो सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प. बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ये Yeah. नहीं करते हैं. अगर कभी हाथ में चोट लगी तो डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएंगे. बट द मेंटल, लाइक योर ब्रेन इज द The मोस्ट most इम्पोर्टेंट important पार्ट. thing. yeah. Yeah. अगर उसको प्रॉब्लम है तो फिर नहीं, डॉक्टर के पास जाने कोई पॉइंट नहीं है. इसका हम्म. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. हम्म. तो जिस तरह हेलमेट पहन के हो ना बाइक चलाते वक्त, Mhm. उसी का जब तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा ना हो तो तो- अगर हेल्प ना मिल रही हो तो गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प. डॉक्टर के पास जाना, Mhm. टेक अ कंसल्टेशन एंड मेक योरसेल्फ बेटर. ट्राई टू मेक योरसेल्फ बेटर. Mhm. और ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, जब लाइक when you try to go like to some professional help ना, कुछ लोग बोलते हैं अबे इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, ये ऐसे ही भाव खा रहे हम हो लोग की रहे हैं। जनरेशन, हम लोग की हाँ. सोसाइटी में भी एक मेंटल स्टिग्मा है. हाँ. व्हेन वी सीक फॉर मेंटल हेल्थ और या मेंटल हेल्प हाँ. पे जाके हम लोग मेंटली समझ लेते हैं। पहले तो- तो बहुत ज्यादा होता, हाँ, अब थोड़ा अब बेटर हो थोड़ा रहा है। बेहतर Like, हो रहा है यार। एज टाइम पास लोग समझ रहे हैं कि हाँ इट्स इम्पोर्टेंट, बट स्टिल अभी भी लाइक सोसाइटी में हम्म, अगर तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. Fully accept नहीं इफ करती। यू गो, अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने जा रहे हो तो वो तो और बड़ी बात हो जाएगी. तुम कैसे डॉक्टर के पास चले गए, पागल हो गया वो। पागल हो गए हो क्या, ऐसे Yeah. करके हो जाता है. हम्म, तो इट्स लाइक अगर तुम्हारी तो मेंटल जब हेल्थ ठीक हो खराब है जाएगा। तो दे लाइक वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लाइक दे विल इग्नोर यू. हम्म, बट इफ यू गो सीक फॉर हेल्प तब उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है. तो वही है ना, इट्स द सेम टॉक्सिक सिचुएशन की अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं इंडियन सोसाइटी में, अगर वो लोग मैरिड हैं एंड दे आर फाइटिंग और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तब इंडियन सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं है. तब वो ये कहेंगे कि वो उनका मामला है, उनके घर का मामला है, हम्म, कुछ नहीं, हम लोग को नहीं कहना चाहिए. को संभालना। बट वन डे गो आउट एंड सीक फॉर डिवोर्स, हम्म, तब पूरी सोसाइटी में घर में बातें होती हैं. हम्म, सेम थिंग हैपन्स विद मेंटल हेल्थ. और ये मेंटल हेल्थ खराब है, तुम किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, अगर किसी को पता भी लगता है तो वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे. बट व्हेन यू गो आउट फॉर सीक हेल्प तब उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है. हम्म, तो व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरों का कुछ भी सोचना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. हम्म। सोसाइटी जो सोच रही है, जो लोग सोच रहे हैं, समाज जो सोच रहा है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है. हम्म। हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम इंपॉर्टेंट हो. अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो जो तुमको जो लोग प्यार करते हैं हम्म। उन्हें गर्व होगा. अच्छा। वो सोसाइटी जाए भाड़ में, पहले मेंटल हेल्थ को सुधारो हाँ। एंड डू एवरीथिंग यू कैन टू मेक इट बेटर. अगर जो मेरे को अभी जस्ट एक बात स्ट्राइक किया, हाँ, जो लाइक मैं अभी जस्ट लाइक 2-3 दिन से ये फील कर रहा हूँ, लाइक ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होगा हाँ बात. कुछ लोग, आई वुड से कुछ लोग, मैं सिर्फ एक पर्सन को नहीं बोलूँगा लेकिन मैं एक पर्सन को ही बोल रहा हूँ एक्चुअली. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलतियाँ करते हैं and they know, like I don't know whether they know that or not कि वो गलतियाँ कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन they like बहुत रिपीटेशन, सेम थिंग्स का रिपीटेशन करते ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू डिड समथिंग, I scolded you, I humiliated you in front of everyone, and you did that
thing again, Mm-hmm. and I again scolded you, Mm. but you are doing that thing again. But Yep. then when I scold you, you were saying that I am like mentally pressuring you. Is it like, can we support it, or can we like agree with that? और वो मान लो like if I am saying this in case of the not कि मैं सिलेबस जा रहा हूँ, सिलेबस फिर से बैकलॉग रहा है, सिलेबस जा रहा हूँ फिर से बैकलॉग रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं. द थिंग दैट इज अनएथिकल, लाइक अच्छा नहीं है, जो लाइक रियलिटी में अच्छा नहीं है. लाइक लेट्स से यू आर स्मोकिंग, लेट्स से ऐसा गलती कर रहे हो, Mhm. and I scolded you, but you again started smoking. Then I again scolded you. Then again you started smoking. But then when I start to scold you, you start saying कि ठीक मुझे mentally mentally pressure pressuring. कर रहे हो. mentally pressurize कर रहे हो. So So like उस situation में like who's wrong here? the thing is the authority You know of power in यहाँ पे which देखा context जाएगा. I am saying I that. know that, but Yeah. Like I it's think a the complicated situation. person is not aware of everything he is doing, I believe, or he is not accepting the things he is doing. Or maybe he is delusional, I believe. तो मैं यहाँ पे कहूँगा the only thing you can do is if the person is, देखो मेरे लाइफ में कुछ उसूल है और उसमें एक बहुत ही ऊपर है कि if someone is not asking your help for directly, मैं इसकी हेल्प नहीं करता. बिकॉज अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है कि वो तुमसे हेल्प नहीं मांग सकता, लाइक अगर कोई बंदा मर रहा है तो ऑब्वियसली मैं उसकी हेल्प करूंगा जाके. बट इफ अ पर्सन लाइक ऐसे डेली लाइफ में अगर कोई बंदा एक खराब हालत में है एंड ही डजंट आस्क मी फॉर माय हेल्प डायरेक्टली, तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा. बिकॉज मैंने पास्ट में लोगों की हेल्प करी है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है. बिकॉज मैंने मान लो कि मैं किसी चीज़ में हेल्प कर दी, फिर वो तुम कोई चीज़ कर रहे हो और वो कुछ खराब हो जाता है, तो दे विल डायरेक्टली ब्लेम इट टू यू. बिकॉज एज अ ह्यूमन हम लोग कभी खुद की गलती नहीं देखते हैं, हमेशा दूसरी गलती देखते हैं. Ungrateful. तो अनग्रेटफुलनेस होती है. इट्स नॉट अनग्रेटफुलनेस, हम लोग बस अपना लाइक जो हम लोगों ने गलत किया उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. Yeah. तो मेरा ये उसूल है कि इफ़ यू डोंट आस्क, अगर तुमने मेरे से हेल्प मांगी है आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. वहाँ पे मैं सेकंड थॉट नहीं देगा. अगर तुमने मेरे से हेल्प नहीं मांगी तो हेल्प नहीं करूँगा. इस सिचुएशन में वो तुमसे हेल्प नहीं मांग रहा है, ही इज स्मोकिंग, अगर एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, इफ ही इज स्मोकिंग और उसने तुमसे डायरेक्टली हेल्प नहीं मांगी है, तुमने एक बार बोल दिया उससे, यू डिड योर जॉब एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू डिड योर जॉब. तुमने उसको बोल गया कि गलत कर रहा है, यू शोड हिम का मिरर. अब उसने अगर अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो तुम उसकी आंखें को नहीं खोल सकते. No, like ऐसा देखो, स्मोकिंग पर्सनल चॉइस हो जाता है. Yep. स्मोकिंग पर्सनल चॉइस है. वो एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा. लाइक it is a action that affects others, also affects someone that like I am friend with, In that or like way. someone I know. It affects someone. So in that case, like let's say okay, so like we discussed about it in the background. So it was decided that there was kind of like a victim gun, and it's gonna like तुमको ही इफेक्ट कर रहा है, उसको इतना हाँ. इफेक्ट कर रहा नहीं है, अगर कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ जाओ. इसलिए आगे बढ़ इट्स द जाओ. ओनली सॉल्यूशन. It happens in today's society that हाँ, people बहुत create troubles and it affects you indirectly. I have seen that a lot in this university, dude. Okay, let's भाई बहुत लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं. let's move. So let's go to the basics. Why do you think the basic thing that we go through such mental situations or such So like exhausting situations? Do you believe it is like mostly related to the pampering of this generation? I would say some percentage. अब मैं बोलूँगा और इट विल साउंड लाइक अ स्टूपिड थिंग, बट लाइक हम लोग की जनरेशन को ट्रॉमा हैंडल करना नहीं आता. लेट मी एक्सप्लेन. तो Kind of pampering जो से हम लोग आता के है. जो हम लोग के पेरेंट्स के उनकी जो प्रॉब्लम्स की, उनकी जो सिचुएशन की, वो हम लोगों से बहुत डिफरेंट है. पेरेंट्स का अभी भी यही मानना है कि तुम बड़े हो, पढ़ो, जॉब, गवर्नमेंट जॉब लो. आज भी बहुत लोग का गवर्नमेंट जॉब ही एज अ लाइक रिलायबल सोर्स है, लाइक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम. तुम करो, शादी करो, बच्चे करो, एंड देन यू ग्रो ओल्ड एंड डाई. उनके पास उतने ही ऑप्शंस थे, वो लोग उतनी स्पेस में सोचते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है.
उनका एक सेफ स्पेस है, वो अपने में सोचते हैं, वो आज भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दैट्स देयर सेफ स्पेस। LIC ठीक है, LIC पॉलिसी LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद। तो अब हम लोग की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। मैं दोस्त पापा से 2 LIC खुलवाया हूँ 32 में मेच्योर होने वाला था। इतना गंदा इन्वेस्टमेंट है बे LIC। अपने पेरेंट्स को बोलो कि LIC से पैसा निकालवा है बे, बहुत गंदा इन्वेस्टमेंट है। तो हाँ, गुड थिंग इज हम लोग के पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो हम लोगों से डिफरेंट है। They had their own sets of problem, we have our own sets of problem. Yeah. उन्होंने भी उनको डील किया, हम लोग को भी डील करना पड़ेगा। That's the part of life. That is life. Life is a problem. Yeah. तो अब जब हम लोग को डील करना है, अब देखो हम लोग की लाइक मैं ऐसी ये लाइन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट इट्स ट्रू। लाइक हार्ड ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स इजी टाइम, इजी टाइम मेक्स वीक मैन, एंड वीक मैन मेक्स हार्ड टाइम, अगेन हार्ड टाइम मेक स्ट्रॉन्ग मैन, ऐसे करके एक लाइन है। Like, अगर तुम वर्ल्ड वॉर से देखोगे ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फिर ऐसे करके जितनी वॉर्स हुई उसके बाद सॉफ्ट टाइम आया है। अभी जो हम लोग की जनरेशन है वो वीक, मुझे ये टर्मिनोलॉजी उतनी अच्छी नहीं लगती, बट कहीं ना कहीं सही है कि स्ट्रॉन्ग मैन मेक्स इजी टाइम, इजी टाइम मेक्स वीक मैन, वीक मैन मेक्स हार्ड टाइम, एंड हार्ड टाइम मेक्स स्ट्रॉन्ग मैन। इट्स ओवरऑल साइकिल। मैं खुद को मानता हूँ कि हम लोग अभी ऐसी जनरेशन में है जो सॉफ्ट मैन में आके, हम लोग सॉफ्ट लाइक हम लोग को पैम्पर किया गया है। हम लोगों ने कभी कोई लड़ाई नहीं करी है जाके, हम लोगों ने कोई वॉर नहीं लड़ा है। इट्स अ गुड थिंग। वॉर चल रहा है अभी, आई वांट से अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। बहुत सारी वॉर अभी हम लोग के अभी चल रही है। सिचुएशन अभी लाइफ इजी नहीं है, बट अभी हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। रिसेंटली अभी ऐसे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हम लोग की लाइफ में नहीं हुआ है जो हम लोग को ऐसा हार्डशिप करे। तो जो हम लोग की लाइफ में जो सबसे बड़ी बातें हुई वो जेई था, सबसे कम्युनिकेटिव टाइम वो जेई था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जेई के अलावा लाइफ में कुछ खराब नहीं हो सकता। भाई ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका घर चला गया, फैमिली चली गई, वो अभी भी जिंदा है। उनका मेंटल स्टेट के बारे में सोचो। तुम जेई नहीं पास कर पा रहे हो, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। लाइक इट्स फनी ना। अगर तुम सोच कभी अगर ऐसे थॉट आए कि तुम्हारी लाइफ खराब हो चुकी है, तुम अपने नीचे जो तुम्हारे नीचे है ना उसको एक बार देखना कि वो भी जी रहा है ना, तो तुम्हें थोड़ी सी ऐसे हिम्मत मिलेगी कि हाँ जब उसकी सिचुएशन इतनी खराब है तब भी वो जिंदा है, तुमको भी जीना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हाँ, मैं अभी एरोगेंट साउंड कर रहा हूँ बहुत गलत तरीके से, बट एक्सैक्ट ट्रू थिंग अगर तुम सोचोगे, एक्सैक्ट डेफिनेटली ट्रू थिंग। तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी है, अगर तुम एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुमसे भी बुरी कंडीशन में लोग जी रहे हैं और वो खुश हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लाइक अपना बिग बॉयज पैंट्स पहनना पड़ेगा, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइट। ऐसा नहीं कि यू हैव गोना टेक अ मेडिसिन तुम्हारा डिप्रेशन चला जाएगा। या आपको वर्क हार्ड, जिसका फिजिकल थेरेपी होती है उसी का मेंटल थेरेपी होती है। यू हैव टू गो थ्रू इट। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या डिप्रेशन की मेन चीज़ बताएं क्या है? व्हेन यू हैव अ डिप्रेशन तुम बेसिकली अपने गोल्स को भूल जाते हो। एवरीथिंग गेट्स क्लाउडी। तो अगर तुम्हें डिप्रेशन ठीक करना है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट ये मेरा खुद का है, तो तुम्हें डिप्रेशन ठीक करना है, अगर तुम अपना मेंटल स्टेट ठीक करना है, जो तुम्हारा रूट कॉज है ना उसको निकाल दो। You have to find the root cause. You have to eliminate it and you have to make sure वो root cause वापस फिर से ना आए किसी और रूप में। तो ये 3 पॉइंट्स को मैंने लाइक अपने में डील किया था। And knowing the root cause is the most important part. Yep. Yes. Like halfway is done if you can know what is your point out root कर लिया cause. ना कि तुम्हारी गलती क्या है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम कैसे हटाओगे, you have to figure out and then you have to make sure वो गलती फिर से कभी रिपीट ना हो। तो अगर गलती तुमने करी है तो ठीक है, गलती करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और गलती फिर से रिपीट करना दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। छोटी से बड़ी रिगार्डलेस, कभी गलती रिपीट मत करना। करो, पहली बार किया है सीखो, फिर नेवर रिपीट इट। तो मेरा कोई पॉइंट ये था कि हाँ तुम्हारा मेंटल स्टेट खराब है, सीख मेंटल हेल्प, सीख प्रोफेशनल हेल्प एंड ट्राई एवरीथिंग यू कैन टू मेक योर मेंटल हेल्थ बेटर। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुमसे बदतर कंडीशन में जी रहे हैं और वो अपनी लाइफ को लाइक लिव ऑन कर रहे हैं। तुम्हें भी करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लाइफ है, लाइफ जीनी पड़ेगी। हाँ, तो लाइक मैं बेसिकली पैम्परिंग से ये बोल रहा था
कि लाइक हमको एकदम लाइक स्टार्टिंग से पेरेंट्स ने सब कुछ दिया है, सब कुछ थे। तो लाइक मतलब बेसिक नेसेसिटी सब ऑब्वियसली मिला ही है. लाइक वी हैव गॉट लाइक बेसिक नेसेसिटी प्लस 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 अल्ट्रा प्रो मैक्स और समथिंग लाइक दैट. हाँ, If we want something, they will instantly हाँ, provide us with everything. तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि वी विल गेट द बेस्ट that is possible, but you have to know that you deserve the best possible. Everyone deserve the best thing possible, but you might not get it. Yeah. There's a difference between I have to get the best thing possible and I deserve the best thing possible. So like differentiate that. It's very well said. Nice. So like you might deserve it, but you might not get it. It's not mandatory. Yeah, it's not mandatory. You have to accept the fact. you बहुत लोग deserve it, but you might not get Get it. it. might not That's get a it, beautiful line. Yeah, they're very, very good people out, right? हाँ, मैंने बहुत लोगों को Yeah. देखा है जो वेल डिजर्विंग थे, but they didn't get it. The less deserving person gets it. Life is not fair, man. Life is like जिस दिन यार, तुम ये रियलाइज कर लोगे ना कि life is not fair, उस दिन तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व solve हो जाएगी. Yeah, I Life agree. is not fair. The problem And with- sometimes even if you give your 100%, तुम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते. That's just life, man. And if there is no problem, everything is going according to me, according to you. Like let's say I'm living my life, everything according to me. So like, will there be any fun? Nah. Nah, man. अगर life Like you know what is fun when you have seen the hard times, nah. Yeah. If you don't even see hard times, how will you differentiate what is fun and what is normal? Everything is true, that constant is then, true. right? Yeah. तुम्हें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं कि होगा ये तुम fun you are part है. living हाँ. हाँ, you are living in a good time. हाँ, वही, yeah. हाँ. If you never face a bad time, you will never know you have a good time. हाँ, वही. Like me and exactly. Pranjal have decided that after every semester we'll go on a trip, right? After all the giving exams and we'll go on a trip. एक इज अ मैंडेटरी, हम लोग को Yeah. ट्रिप जाना ही जाना है. Okay. अगर यहाँ पे एग्जाम्स का प्रेशर ये सब ना रहा तो हमेशा हम ट्रिप जाएंगे तो क्या उसका मजा ही नहीं रहेगा ना. उस ट्रिप का पॉइंट ही नहीं है अगर तुमने उससे पहले एक हेक्टिक शेड्यूल फॉलो नहीं किया है. हाँ, उस हार्डशिप के बाद एक ज्यादा मजा आता है ना. Yeah. कुछ मतलब फील ही कुछ अलग होता हाँ, है. फील कुछ आता है भाई. Like जब तुम एग्जाम खत्म करने के बाद कहीं पे निकलो ना, that feeling, man. okay, so like to add on to this, one of the most important phase where I switch my mental state, like in the end of 12, because like 12 के end के बाद भी I think 4-5 months थे JEE के लिए. My parents decided to take me to a trip, 4 to 5 days का था I guess, 20 days prior to my 12th final exam. They thought like ऐसा कोई करता नहीं है. फाइनल एग्जाम के 20 दिन पहले तुमको घुमाने ले जाते हैं, तुम बोलोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको धुलाई देंगे. बट द थिंग इज दे रियलाइज कि इट इज इम्पोर्टेंट. मैं बहुत लाइक 2 years से मैं अंदर घुसा हुआ था. दे रियलाइज कि लाइक ओके, लाइक ही नीड्स रिफ्रेशमेंट. सो जब मैं गया उसके बाद आने के बाद आई रियली फेल्ट गुड. लाइक दैट वाज द आई वुड से दैट वाज द फेज वेयर आई स्विच माय मेंटल लाइक आई वुड से ट्रॉमा और एंजाइटी. तो लाइक उसके बाद से भी वो था लाइक टफ था ओवरकम. लाइक ये सब शेड्यूल मैनेज करना, सिलेबस खत्म करना टफ था, बट मैं उतना डिस्टर्ब नहीं था जैसे पहले था. So like traveling and like exploring changes then. Yeah. You should like and also physical activity like ये affects point बहुत your important है. mental state a lot. बोथ आर रिलेटेड. अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ खराब है तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है. बोथ आर कनेक्टेड. कई लोग सोचते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं. नहीं, दोनों एक साथ हैं. दोनों तुम्हारी बॉडी अलग अलग नहीं है. मतलब ब्रेन तुम्हारी बॉडी में ही है ना, तो तुम्हारी बॉडी अगर स्वस्थ नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी, तुम्हारा ब्रेन भी हेल्दी नहीं रहेगा.
at least तो हाँ try physical at least try going, if you like, even if you don't want to go to a gym, at least try going like be for a walk. physically active. Yeah, It doesn't be have to be a physically- gym. Yeah. तुम स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कोई भी for a- स्पोर्ट खेल go for a सकते हो. walk. But- It just has to be a physical movement. तो मैं उसको करने के बाद खुशी होनी चाहिए. That's But the most important thing. बात ये है ना कि like वो होता है ना, the वो लूप किसको बोले, लाइक द सेल्फ एनिमी लूप, कि तुम डिप्रेस्ड हो इसलिए तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एंड तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो इसलिए और ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो. Oh, yeah. हाँ, द फीडबैक लूप ऑफ हेल्थ. तो तुम इसके लिए वो देख सकते हो, आई थिंक. हाँ, क्या था, नॉट गिविंग ए फक अबाउट ना, क्या था उसका मार्क, क्या था बे, बुक में भूल गया बे. बुक का नाम है नॉट गिविंग अ फक. हाँ, नॉट गिविंग ए फक. हाँ, ऑथर कौन था, डोंट रिमेंबर. मार्क समथिंग था बे, मैं कैसे भूल गया, जस्ट रीड किया था मैं वो. हाँ, तो उस वो पढ़ सकते हो, द फीडबैक Not giving a fuck. ओ हाँ, या the subtle art of not giving a fuck. फिर इसका एक दूसरा पार्ट भी है ना. हाँ, एवरीथिंग इज फक्ड अप, ऐसा कुछ है. Everything लाइक दोनों का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में. डोंट वरी फॉर इट. हाँ, तो उसमें बहुत अच्छे से समझा हुआ है द फीडबैक लूप ऑफ हेल्थ. तो ऐसा होता है ना कि तुम गुस्सा हो, इसलिए तुम गुस्सा हो, एंड तुम गुस्सा हो के ऊपर इसलिए तुम और गुस्सा हो. सो बात वैसा है. तो ब्रेक दैट लूप. तुमको मन नहीं है बाहर तुम्हें जाना, सीखना थोड़ा पड़ेगा. सा थोड़ा यू सा हैव टू लर्न हाउ टू ब्रेक अ लूप या बिकॉज इट्स सुपर हार्ड. तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा तुम लूप में हो. तो अगर तुम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर तुम डिप्रेशन का मोस्ट ऑफ द रीजन होता ही है कि तुम लूप में फंसे हुए हो ना. बिकॉज डिप्रेशन इज नथिंग जस्ट लाइक अ रियली बैड सिचुएशन. राइट, हाँ, क्योंकि तुम उस सही में- सिचुएशन में पहुंचे हो, डायरेक्टली नहीं पहुंचोगे. इट्स अ स्लो प्रोसेस. हाँ, वो स्लो प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. हाँ, वो जेई में मोस्टली ऐसा ही होता है ना कि बैकलॉग नहीं हो रहा है, बैकलॉग कंप्लीट करने में फिर से लूप लग जाता है कि फिर से बैकलॉग लग गया, और फिर से बैकलॉग लग गया. फिर ड्रॉप. हाँ, वो लाइक लूप. हाँ, सो हाँ, अभी अब बहुतों का होता है रिलेशनशिप में वो होना. ओ हाँ, हम लोगों ने उस वाले पार्ट को Touch नहीं डिस्कस किया. नहीं किया. लेट्स डिस्कस इट. Okay. Bluntly, if you are getting into a relationship, be ready for everything. The sweetness, the bitterness, the hell, the heaven. Be ready for everything. One day you will be flying in the sky, and the other day you will be like fried in hell's kitchen or something like that. So bluntly, I am saying that. Be ready for everything. Okay? Like, तुम लोग ऐड करो, तुम लोग प्यारे प्यारे रिलेशनशिप में ऐड करो तुम लोग. द मोस्ट रिलेशनशिप में तो बस यही होगा ना कि इट्स अ पर्सनल थिंग. तो मैं ज़्यादा नहीं बोलेगा, बट रिलेशनशिप में क्या ही बोलूँगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा. कट ये पार्ट कट होगा. सब लोगों का अलग अलग होता है ना. वही को इसमें हम लोग जगह नहीं बोल सकते. बट लाइक डिप्रेस्ड. मैं थोड़ा बहुत इसमें बोल सकता हूँ. हाँ, नहीं, बट आई वोंट से कि यहाँ पे बोलना चाहिए बिकॉज रिलेशनशिप प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग एक अलग से पॉडकास्ट हाँ, मैं जस्ट वही कहने वाला था. इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. देख सकते हैं ना. मतलब अभी नहीं देख रहे हो दिमाग देख रहे हो. अभी नहीं, मतलब 10 एपिसोड जाने के बाद तब देखा. विल बी मोर फ्री. और फ्री होंगे और Yeah, we have to gain some experience in this matter, right? Yep. कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. क्या कोई करोगे? एक्सपीरियंस ही नहीं क्या है. कहे, कहाँ पर क्या बोलना है, कुछ उल्टा पुल्टा निकल गया तो हाँ, वो भी पड़ेगा बाद है. में. पूरे कपल्स हमको धोएंगे, तुमने ये क्या कर दिया. वही. Okay. हाँ, बहुत बोल रहे हैं शायद. कितना होगा? आज बहुत बोल गया. और Okay, let's do एक a घंटा हो गया है. let's do movies. हाँ. Let's do a rapid movie suggestion. रैपिड मूवी सजेशन. लाइक ओ या, If you are Rapid movie suggestion. मैं first. ओ या. If you are going through a bad time, do watch Shawshank Redemption. The best movie someone can suggest Yes, to when very you good. are going through a bad phase. Like पहले बोरिंग लगेगा, देखता रहना. मैं बोल रहा हूँ, like मेरे लिए देखता रहना, तुम्हारे लिए भी नहीं. यार लास्ट में तुमको जो फीलिंग मिलेगा ना, no movie can give you that. एंड गेम अलग बात है. No movie can give you that. I can like assure you of that. Like मेरे को बहुत हेल्प किया उस टाइम में. मैंने 7-8 times देख लिया है Shawshank Redemption. Okay, It's very- Avinash. I think I will go with Tick Tick Boom. Tick Tick Boom. Okay, It's, that's also nice one. It was quite inspiring to me. But the thing that he didn't
he had an idol, the Jonathan Larson, Mhm. the character Andrew Garfield plays in the movie. Mhm. Yeah, he's a music composer. So what happens in the movie is that he had an idol. He got his success around at the age of 28, so he believed that he will also get his success around that age. He didn't get it. Mhm. So all the problems, right? How you imagine? Mhm. I will not give any more spoilers, but it's great. If you like music into the movie, it's very good. And one more thing for वो Shawshank Redemption कि don't watch any trailer before watching it. Yeah, Don't ask anyone कि what's gonna happen in the movie and what is the movie about. Just start watching it. अगर तुम वो like किसी से पूछना या ट्रेलर देखना स्टार्ट कर दो तो you might ruin the feel that I have told you. Yeah. Ranjan? तो मैं एक एनिमेटेड मूवी है, उसका नाम है सोल. Oh, how can I miss that? Like a part of death. और तुम मान लो तुमने कोई अपना गोल सेट किया है एंड यू वर्क योर होल लाइफ फॉर दैट गोल, लेकिन तुम बीच में ही मर जाते हो, तो क्या होगा? या टिक टिक में यही होता है. मतलब हाँ मतलब सक्सेस मतलब We are not gonna spoil it. We are not gonna spoil it. We are not gonna spoil it. But Soul is a it's suggestion. basically like तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे कि तुमने मान लो कुछ अचीव करना था, हाँ और वो एक और वो ब्रॉडर नहीं हुआ. पर्सपेक्टिव लाता है वो मूवी ना. तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी. यू हैव टू फाइंड न्यू गोल्स. तुम्हें अगर कुछ नहीं मिला जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई. बड़ी बात तुम्हारे लिए है, बट you have to find like more perspective Embrace it. करेंगे. Yeah. Like you have to embrace it, you have to accept it, you have to live with it. You have to three live movies with are that connected to our podcast also, right? The people have experienced someone mental difficulty, right? All of them, right? Shawshank Redemption, right? He was in a prison. Yeah, he was not getting his first album being composed. fact. Yep, soul. Yeah. And that's why we are suggesting that ना. Yeah, हाँ, like- ये मूवी का सजेशन इसीलिए है, इसीलिए है. टॉपिक के ऊपर है. Mhm. तो हाँ और कुछ है क्या? हाँ जोकर है, बट जोकर बहुत डार्क हो जाएगा. जोकर वो लाइक डिफरेंस हो गया, कुछ अलग ही फील में चला I think जाएगा. both of you have not seen Perks of Being Wallflower, right? ओ या The Perks of Being an Wallflower. बट वो हम Fight Club फ्रेम में is नहीं also आ good, रहा I है, guess ना. तो वो भी Fight फ्रेम Club में is नहीं आ also- रहा है. हाँ, वो नहीं आ रहा है. फ्रेम में तो नहीं आ रहा ऊपर भी एक है. यहाँ पे है. देख सकते हो, यहाँ पे लेकिन सारी फील गुड मूवीज हैं. थ्री इडियट्स इज अ ग्रेट मूवी. Three Idiots is a good movie. Every day, everybody. Fight Club is also good ना. Oh, Fight Club is an awesome movie, man. One of my most favorite movies. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury. Oh boy. Godfather. But hey, हम लोग अभी डिस्कशन हाँ, yeah. पॉइंट से जा रहे हैं. So, एक हम बार लोग ऐसे तीनों ने 3 मूवी सजेस्ट करी है. यू कैन वॉच लाइक Shawshank okay, finally Shawshank Redemption, Tick Tick Boom and Soul. Soul is an animated movie. तो हाँ, आज की पॉडकास्ट में हम लोगों ने ट्राई किया है कि एक ने बड़े टॉपिक और एक ने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बोलने का. तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो बच्चे समझ के माफ कर गए ना. हाँ बच्चे को नहीं रहे हम लोग. 18 नहीं, हम लोग की एज क्या है? 20 साल हो गए. 20 एवरेजेस 20 साल. हाँ 20. तो बच्चे को नहीं रहे, बट स्किल वी आर लर्निंग, वी आर एडल्टिंग. हाँ. बेसिकली इस पॉडकास्ट का थीम ही यही है कि हम लोग बच्चों से एडल्ट में जा रहे हैं. Yeah. We learn टीनेज लाइफ things. टू एडल्ट लाइफ, इट इज अ ट्रांजिशन. किसी को भी कोई लाइक हर्ट फील हुआ तो हाँ, बोल किसी देना को like हर्ट फील हुआ तो आप कमेंट से बोल देना. और लाइक तुमको अगर हेल्प चाहिए ना, एंड लाइक आई एम ओपन टू दिस वेरी मच. अगर किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए, यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, please You if can you reach need out. help, Yeah, and yeah. if you can't reach to like anyone you know, please reach out to me. हम I will लोग help as much as I links can. रहेंगे अगर तुम्हें पर्सनली रीच आउट करना हो. और लाइक इट विल बी अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन. किसी के साथ हम लोग शेयर नहीं करने वाले हैं. हम तीनों में से किसी से बात करनी हो, क्योंकि like इंस्टाग्राम पे आप आके डायरेक्टली मैसेज कर देना. वी विल टॉक विद यू. इट विल बी कंप्लीटली प्राइवेट थिंग. Like you know why I am saying this, because I have like realized the importance of sharing things ना. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं. कई बार स्ट्रेंजर से शेयर करना बेटर होता है. हाँ. Yeah. But किसी like, नोन पर्सन से. we were क्या बोलते हैं? We were grateful. ना कैसे बोलते हैं? We were like क्या बोलते हैं उसको? Topic क्या मतलब किस बारे में? Like we were blessed enough. I'm blessed. Yep. कि we had someone to share our thoughts with ना. तो अगर तुम्हारे पास कोई भी कुछ like शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, please like don't hesitate to like reach out for help from us. We will help as much as we can. सेंसिटिव टॉपिक था बहुत. Mhm. तो हम लोग को बताना पॉडकास्ट कैसा लगा. अगर कोई इनपुट देना हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हो. Mhm. और ये पॉडकास्ट थोड़ी सी लेट हो जाएगी बिकॉज
सबको फ्राइडे को या सैटरडे को आना का आई फ्लू आई फ्लू हो हाँ, गया आई क्या यार, फ्लू हो हमारे गया था। दोनों जो बंदे बैठे हुए हैं दोनों में से एक बंदे को आई फ्लू हो गया का। तो हाँ, पॉडकास्ट थोड़ा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट, आगे से नहीं होगा। वी कांट प्रॉमिस इट बट वी विल ट्राई कि आगे से ऐसा पॉडकास्ट डिले नहीं होगा। तो हाँ, आज के पॉडकास्ट में एक तरह का कोई भी कमेंट करना हो कर सकते हो, यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक। अगर रीच आउट करना हो पर्सनली तो सबके लिंक्स शेयर में डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, यू कैन रीच आउट। तो हाँ, आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय, क्या सी यू, बाय बाय। Peace, be happy. पीस।